Hello everyone and welcome back to my channel. इस वीडियो में we are going to discuss one sample paper of class 11th marketing. ठीक है, ये जो sample paper है ये it is given prescribed by CBSE and 2024-25 is the session. Okay, let's start with the paper. तो जो मार्केटिंग का आपका क्लास 11th का पेपर होगा बेटा वो 60 मार्क्स का होगा, 3 hours का पेपर होगा. And the question paper will be divided into two sections. Section A, which will be related to objective type questions, 30 marks के question होंगे and हर question जो होगा वो 1 marker हो, right? Section B subjective type का है, ये भी 30 marks का है और इसमें आपके 18 questions हैं जिसमें से आपको 11 attempt करने. इन टोटल आपके पेपर में सेक्शन ए और बी को इकट्ठे अगर हम देखें टुगेदर 24 क्वेश्चंस होंगे और इन 24 में से आपको इन टोटल 7 अटेम्प्ट करने, 6 करने हैं सेक्शन ए से, 11 फ्रॉम बी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एंड हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है. Right. So first question is, which of the following is not among the basic principles of effective communication? The right answer is corresponds. Second, it is important in having mutual understanding with colleagues. So अगर आपको you want that there should be proper understanding, so listening is important. Then when we press the right mouse button on a paragraph or image or any object, which menu is displayed? So context menu is displayed. The quality of entrepreneurs' creativity and innovation quality are closely related, yet they are different. State the difference. अब आपको इसमें क्या explain करना है? What is the difference between these two terms? ठीक है, दोनों टर्म्स जो है वो क्रिएटिविटी इनोवेशन एंटरप्रेन्योर से ही रिलेटेड है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. व्हाट इज दैट? क्रिएटिविटी इज जस्ट कमिंग अप विद एन आइडिया. इट इज कमिंग अप विद एन आइडिया. फिर इनोवेशन क्या हुआ आपका? इनोवेशन इज अबाउट coming up with ways to make idea into reality. Means how to convert idea into reality. That is innovation, right? सिर्फ आइडिया में कन्फाइंड हो तो क्रिएटिविटी है, कैसे आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना है उसको हम बोलते हैं इनोवेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल प्रमोट ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज फ्रॉम योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग phrases reflects the marketing concepts? तो इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. The right option is, this is what I want, won't you please make it? Why this is the correct option? क्योंकि इसमें कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है. क्योंकि कस्टमर पूछ रहा है, कस्टमर बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, क्या आप बनाओगे? तो कस्टमर के अकॉर्डिंगली गुड्स को बनाया जाता है. दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. STP stands for segmentation, targeting and positioning. Targeting and positioning. Right. Third part, which of the following product do not belong to the same kind of market? So Bhujia Bhelpuri, hospital bed and tractor is the right answer. Third, name the Latin word from which the term market has originated. तो ये important question है, कई बार आप पूछ सकते हैं आपसे UTs में, half yearly में. So this is the Latin word from which market is originated. Next is
Define Generation Y. Generation Y includes people born after the year 1980. तो उसको Generation Y बोलते हैं. Now, sixth part, due to COVID-19, offline schooling was stopped for almost 1.5 years. तो इससे बिजनेस ऑफ चौक डस्टर मैन्युफैक्चरर्स का बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, लेकिन लैपटॉप और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का बिजनेस डिमांड में आ गया. तो ये कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर की बात है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इज डिस्कस्ड हियर? दिस इज मैक्रो एनवायरनमेंट. क्यों मैक्रो? क्योंकि मैक्रो इज अ अनकंट्रोलेबल. राइट, अनकंट्रोलेबल है. ये कोविड जो है किसी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं था. दिस इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच अफेक्टेड द बिजनेस. Then comes seventh. In this form of competition, modern market accept the argument that all firms compete for a limited amount of market share. Which type of competition is this? This is competition among all firms. Now question number 3. इसमें 7 में से 6 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. In order to boost and double India's export of goods and services to over USD 1200 billion by 2027, it is important to lower effective corporate tax rate. तो क्या इसमें बोला गया है कि अगर इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो टैक्स रेट जो है वो कम करना चाहिए. ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जितने भी टैक्स फ्रेमवर्क टैक्स प्रोसीजर है रेगुलेटरी उसको सिंप्लीफाइड करना चाहिए. तो अगेन, which dimension of business environment is explained here? It is economic and legal. Why it is economic and legal? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने का बोला है, देन लीगल रेगुलेटरी टैक्स फ्रेमवर्क हो गया. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मन्नू goes to school which is mile away from his home by walking every day. Now, due to increasing temperature, he insisted his parents to buy him a bicycle in order to make his daily commute between home and school easier. तो जो मन्नू है वो he goes to school, ठीक है, by walking. तो अब now he is telling his parents कि उसको एक साइकिल बाइसाइकिल खरीद के दे दे ताकि instead of walking he can go to the school by bicycle. So, which buying role is played by Manu? There are different buying roles. This is from Unit 5. So, Manu is initiator. Why is initiator? Because it is he who is requesting the parents to get him the bicycle. So, start किसने किया है buying procedure? Manu ने. Therefore, he is initiator. Next, making the product available at all possible outlets is the motto of. It is intensive distribution में होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो हर जगह अवेलेबल हो जाए. राइट. देन who is considered as father of modern marketing? This is important. It is Philip Kotler. ठीक है. Next, it is a person who purchases the product but may not directly consume it. Customer. Now sixth, blank दिया हुआ आपको. It is any group that has actual or potential interest in or impact organization ability to achieve its objective. So it is basically public. Public कौन होते हैं? जो organization के जो objectives हैं and the ability to achieve the objectives उसको influence करते हैं. ठीक है, उनका काफी major impact होता है organization के ऊपर public का. Now, positioning is done to achieve. पोजिशनिंग क्यों की जाती है? कस्टमर फोकस वैल्यू प्रोपोजिशन अचीव करने के लिए, ताकि कस्टमर के माइंड में एक अच्छी इमेज प्रोडक्ट की क्रिएट करी जा सके. नाउ फोर्थ, 6 में से 5 करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. लाइफस्टाइल ऑफ पीपल गेट्स रिफ्लेक्टेड इन एक्टिविटीज, इंटरेस्ट,
and opinion. Right? Now, the second part is the term marketing mix का मतलब क्या है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टूल्स. कौन से टूल्स हैं वो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, promotion. So it is a blending of 4 strategic elements. Third part, Raju grew up in an upper middle class family and he became a successful published author. However, he did not feel that he was a success and walked into a lake drowning himself. What level of need was his missing? So राजू क्या हुआ, इसने सक्सेस, ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल ऑथर ऑल्सो, लेकिन उसको लगा कि उसको सक्सेस नहीं मिली है और ही ड्रोन्ड हिमसेल्फ इनटू अ लेक. ठीक है, तो कौन सी नीड उसकी मीट नहीं हुई थी? एस्टीम नीड्स. इसको हम सेल्फ एस्टीम नीड्स भी बोलते हैं. सो कौन सी नीड्स होती है ये? नीड्स फॉर रिकॉग्निशन. उसको लगा कि ही इज नॉट सक्सेसफुल. राइट. नाउ फोर्थ, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा. देन फिफ्थ पार्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 इज इट मस्ट बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर्स. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर करोगे कि क्या हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो आप जो भी नई चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही हैं उसको आप नहीं कोप अप कर सकते उनके साथ. अगर आपको पता है कि ये नए 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 चेंजेस हो रहे हैं, आप उन चेंजेस को अपने बिजनेस में अडेप्ट कर सकते हो और यू कैन मीट द चैलेंजेस. नाउ, मास मार्केट स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज undifferentiated. Right? Undifferentiated marketing. नाउ क्वेश्चन 5 में 6 में से आपको 5 करने हैं और इसमें भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. फिफ्थ इज Bunny is fond of eating chocolates and love to try new brands of chocolates in the market. Most of the time he makes selection among the 2 or 3 famous brands of chocolate in the market. Just the loyalty of Bunny towards chocolate brands. तो इसमें ये है कि बनी को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स का शौक है और वो नए ब्रांड्स ट्राई करता है. राइट. मार्केट में. तो ही ऑल्सो सिलेक्ट अमंग 2 or 3 फेमस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट. तो ये 4 आपको कैटेगरी दी है, इनमें से आपको बताना है कि बनी किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. इट इज सॉफ्ट कोर लॉयल. नेक्स्ट, डिफाइन पर्सनैलिटी एज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर. पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ वंस बिहेवियर. इट इज aggregates of aggregate of one's behavior. Now, third part, marketers create what? Time and place utility. And also, you can write anything. Time and place लिख सकते हो इधर. इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ. Time, place. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो. और भी है. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी लिख सकते थे आप टाइम प्लेस की जगह. ठीक है. आप पोजेशन यूटिलिटी भी लिख सकते थे. फॉर्म यूटिलिटी भी लिख सकते हैं. एनी ऑफ द 5. टाइम, प्लेस, इंफॉर्मेशन, पोजेशन और फॉर्म. कोई भी 2 लिख सकते हैं. प्रोडक्ट्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नोन एज ड्यूरेबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बाय सेटिस्फाइड कस्टमर. यहाँ पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के बारे में बता रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज word of mouth communication. Merchants and agents are the type of
marketing intermediaries. Now क्वेश्चन नंबर 6 में से 5 है करने आपको, और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. Okay. Dash is the person who changes the product to a usable form for consumption in terms of domestic usage. तो प्रोडक्ट को घर पे यूज करना है इन अ यूजेबल फॉर्म. सो प्रिपेयरर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मदर. जैसे आपकी मदर रॉ वेजिटेबल्स लाती है और उसको कन्वर्ट करती है, कुक करती है, फूड बनाती है. सो दैट इज प्रिपेयरर. देन मार्केट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर, एक्चुअल बायर, बोथ ए एंड बी. इट इज बोथ ए एंड बी. पोटेंशियल बायर कौन होते हैं? जो अभी तो आपके बायर नहीं है लेकिन फ्यूचर में दे कैन बाय योर प्रोडक्ट्स. एक्चुअल बायर जो खरीद रहे. थर्ड, न्यूज़लेटर, कैटलॉग्स, इनविटेशन, ये सारे एसोसिएटेड विद प्रमोशन. नाउ a product might be really good, but if the consumer feels it is useless, he or she would never buy it. अगर प्रोडक्ट कस्टमर को लगता है अच्छा नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा. ये किस चीज का एग्जांपल है? उसके बिलीफ का. कस्टमर का क्या बिलीफ है? पेरेंट्स प्ले द रोल ऑफ गेट कीपर. वाई गेट कीपर? गेट कीपर का क्या काम होता है? ठीक है, फिल्टर करना. तो पेरेंट्स भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, अगर टीवी, पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और बच्चे घर पे है, टीवी देख रहे हैं, तो वो पासवर्ड सेट कर देते हैं, है ना. तो ताकि जो अननेसेसरी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बच्चों तक ना जाए. तो दे एक्ट एज अ गेट कीपर. Which market includes organization that buy goods for producing other goods and services. So it is industrial market. Next is section B. It is related to subjective type questions है ये. और फर्स्ट ये जो 7 से 11 आप देख रहे हो, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं. इनमें 5 में से 2 ही करने, 3 करने आपको, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ठीक है, ओके. What possible steps can be taken in fisheries and transport sector to fulfill the dream of environment friendly economy? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में क्या करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके. सो ये इसमें फर्स्ट स्टेप फिशरीज के लिए तो ये है कि ओवर फिशिंग अवॉइड करनी चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. ठीक है, तो लोगों को बताना चाहिए कि कैसे कंट्रोल फिशिंग करें. और अगर समवन ईट फिश तो उनको तभी खानी चाहिए जब वो काफ़ी प्लेंटीफुली अवेलेबल हो, और सीजन में खानी चाहिए. ब्रीडिंग सीजन में फिशेस नहीं खानी चाहिए. ट्रांसपोर्ट सेक्टर जहाँ तक कंसर्न है तो वन शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट. और जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करिए, वॉक करिए. क्वेश्चन 8, नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन डिफिकल्ट सिचुएशंस कम अप. ये कौन सी वैल्यू है एंटरप्रेन्योर की जो हाईलाइटेड है? इट इज परसिवरेंस. परसिवरेंस का मतलब होता है नेवर गिविंग अप, राइट. थ्री मोर सच वैल्यूज. तो कॉन्फिडेंस है. जो एंटरप्रेन्योर है ही शुड बी कॉन्फिडेंट. ओपन माइंडेडनेस, व्हाट एल्स, इंटर यू कैन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को. नेक्स्ट, फ्रेम एनी 4 ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योर फ्रेंड ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन. तो ओपन एंडेड है, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हो. जैसे व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. एनीथिंग यू कैन आस्क योर फ्रेंड. तुम आज स्कूल कैसे आए? हाउ यू कम्यूट टू स्कूल एवरी डे. वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर in upcoming summer break. Which subject you like the most? Anything you can ask your friend. Give the steps to save a new Word document. So the steps to save a new Word document, आप फाइल पे क्लिक करेंगे. ठीक है,
वहां पे सेव और सेव एज का ऑप्शन आता है। राइट, तो इस तरह आप उसको सेव कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव, आप ब्राउज करिए जो भी जिस फोल्डर पे आपको सेव करना है, फाइल नेम टाइप करिए एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सेव। नाउ एक क्वेश्चन रह गया 10th, लिस्ट एनी 4 ways टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड यू। आप कैसे नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं? बात करके, लोगों से बात करके, देन अपने आप को एंगेज करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके लोगों के साथ, ठीक है, एंड कम्युनिकेट करिए लोगों से, इनवाइट करिए उनको, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। ओके, study of psychological level of consumer had helped in providing numerous useful outcomes. Highlight any 4 such outcomes. तो आपको यहाँ पे 4 रिजल्ट्स या आउटकम बताने हैं, ठीक है, दैट कैन बी गैदर्ड व्हेन यू स्टडी साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो बिहेवियर, जो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि बिहेवियर जो है कंज्यूमर्स का while shopping or making other marketing decisions, right? Number 2, how consumer think, feel, react to different environment, और कैसे वो alternative select करते हैं, ये आपको पता लगता है। अगर आप कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल लेवल स्टडी करते हो तो आपको क्या पता लगता है कि कैसे वो चीज रिएक्ट करते हैं, कैसे चीजों को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा उनको ब्रांड पसंद आता है, ठीक है, शॉपिंग करते हुए वो कैसे डिसीजन लेते हैं, कितनी उनकी नॉलेज ऑलरेडी उनके पास है, कितनी अवेयरनेस है, एंड कैसे मार्केटर्स को स्ट्रेटजीज अडेप्ट करनी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर के साथ डील कर सके। तो ये सब आपको लिखना। नाउ 13th, इन अ रिसेंट ईयर producer oriented model had shown the transition to consumer oriented model। तो आपको बताना है ये वाला कैसे, इसमें आपको 4P से जो 4Cs में शिफ्ट हुआ है उसके बारे में बता। 4Ps कौन से थे? प्रोडक्ट, जो अब चेंज हुआ है कस्टमर वैल्यू में, प्राइस, कॉस्ट में, प्लेस, कन्वीनियंस में, प्रमोशन, कम्युनिकेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, if you happen to be the marketing manager of Good Morning Bakers, a producer of number of variety of bread, where will you put your product in following consumer segment comprising of kids, youth, हेल्थ कॉन्शियस, फूड लवर्स। तो अब आपको बताना है कि अगर आप एक बेकर्स है, ठीक है, आप मार्केटिंग मैनेजर एक अच्छी बेकरी के, एंड आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप इस सेगमेंट के लिए रखेंगे। किड्स के लिए, अगर किड्स आपका टारगेट मार्केट सेगमेंट है तो किड्स को क्या ऑफर करोगे? फ्रूट ब्रेड, स्वीट ब्रेड, अच्छा, यूथ को क्या दोगे? यूथ विल हैव वाइट ब्रेड, देन कम्स हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा सभी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, तो इनको क्या ऑफर करोगे? होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन ब्रेड। देन कम्स विद सेगमेंट फूड लवर। फूड लवर तो क्या पसंद करते हैं? गार्लिक ब्रेड,
kulcha bread, etc. Now 15th, name and explain the process by which a firm recognizes potential opportunity and threat. It is environmental scanning. इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि environmental scanning का मतलब है कि कैसे आप opportunities और threat को identify करते हो, पूरा explain करना है. Now, customers are smart and they evaluate between benefits they acquire and price they are paying for those benefits. तो किस concept की बात की गई है यहाँ पे कि customers जो हैं वो benefits और price को evaluate करते हैं. तो it is customer value. उसको explain करना है. Customer value क्या होता है? Total customer benefits minus customer cost. Now question 17. Identify and explain the stated concept. So duty of business does not end by just meeting need and want of the consumer. मतलब बिजनेस में सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ही ध्यान में रखना सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बिजनेस का और भी काम है. तो इट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करना है. इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज फ्रॉम यूनिट 1, राइट. फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, इट इज फ्रॉम ये फर्स्ट ABC तीनों ही यूनिट 1 से है बेटा. तो उसकी डिटेल वीडियो में कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन. B. Building strong relationship with the customer and partners. Relationship marketing. C. Customer can be convinced and influenced to buy the product. So this is selling concept. Now differentiate between market skimming and market penetration policy. तो मार्केट स्कीमिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट वेरी हाई प्राइस, और पेनिट्रेशन में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट लो प्राइस. नाउ पोजीशनिंग का क्या मतलब है, हाउ इट इज डन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग. सो पोजीशनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट करना, ठीक है. और हाउ इट इज डन, इट इज डन बाय डेवलपिंग यूएसपी. यूएसपी मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, वो हाईलाइट करना. क्या बेसिस है प्रोडक्ट पोजीशनिंग के, बेसिस कैन बी फिजिकल एंड परसेप्चुअल. फिजिकल पोजीशनिंग और परसेप्चुअल. नाउ दिस इज आई थिंक लास्ट सेगमेंट है ये. 5 में से आपको 3 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डायमेंशंस. तो फर्स्ट है बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन. इकोनॉमिक एनवायरमेंट. The number of working women is increasing. Social environment. Reservation of tickets by the internet, technological. Then ban on single-use plastic items, legal. 21. It is nearly impossible to serve the entire population of a country like India by one single company. So to define the customers, population of the country is divided
based on numerous variable. Outline and explain 4 such broad bases of division. तो यहाँ पे कौन सा हाईलाइट किया हुआ है कॉन्सेप्ट? सेगमेंटेशन के बारे में बात की है. तो व्हाट आर द वेरियस बेसिस? द फर्स्ट इज ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक. इसकी भी डिटेल वीडियो बेटा मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसमें से टॉपिक को समझ सकते हैं. देन पर्सनल डेमोग्राफिक हो गया. ए बी इज पर्सनल डेमोग्राफिक. थर्ड इज सोशो इकोनॉमिक. एंड बिहेवियरल हो गया आपका. बिहेवियरल एल है, मैंने चले एल है. एंड देन साइकोग्राफिक. तो इसकी भी डिटेल वीडियो है. अब क्वेश्चन 22 पे आते हैं. FGH is a famous chain selling a large variety of products. ठीक है, इनके प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स. एंड प्राइस क्या चार्ज करते हैं? हाई प्राइस देन कॉम्पिटिटर. फिर डिस्काउंट्स भी देते हैं ये कस्टमर्स को, क्रेडिट टर्म्स देते हैं रिटेलर्स को. एंड कहाँ सेल करते हैं? थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर, ताकि प्रोडक्ट सभी कस्टमर्स को मिल जाए राइट प्लेस में. सो इन्फॉर्म भी करते हैं कस्टमर को थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन टूल. तो इस पैराग्राफ में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज किए हैं ताकि FGH अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करे. तो आपको वो वेरिएबल्स हाईलाइट करने हैं बाय कोटिंग दी रेलेवेंट लाइन. तो पहला तो है प्रोडक्ट है. ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बताया है? एक बारी मैं इसको यहाँ पे फिर लाइंस अभी दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, सो देयर प्रोडक्ट इंक्लूड्स चिप्स एक्सेट्रा. तो ये आपका प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट किया. राइट. इट चार्जेस अ हाई प्राइस. तो ये प्राइस के वेरिएबल के बारे में बताया. देन प्लेस के बारे में, इट हैज 5 आउटलेट्स था ना कहीं पे, या it has 5 of its retail outlets, or it also sell through various grocery stores. So ये प्लेस की बात की गई है. और प्रमोशन की क्या है कि कम्युनिकेशन टूल्स, ये वाली प्रमोशन की. नाउ 23rd क्वेश्चन. A person purchasing AC will probably compare prices. डीलर शोरूम में जाएगा, ऑनलाइन रिव्यूज देखेगा एसी खरीदने से पहले, अपने फ्रेंड से पूछेगा. तो किस प्रोसेस की बात की गई है और स्टेप्स आपको बता रहे हैं. ये आपका यूनिट 5 में से है बेटा. और यहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की बात की गई है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला क्वेश्चन हर बारी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से आता ही है. तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन पहली स्टेज है. फिर है इंफॉर्मेशन सर्च. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में देख लेना यूनिट 5 की. देन इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. देन परचेज डिसीजन एंड एक्शन. एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. ये आपका
23rd का ये आंसर है सारा। Then last question, marketing is not merely confined to goods and services. तो आपको स्कोप ऑफ मार्केटिंग के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्वेश्चन 24। तो इसमें क्या क्या आता है? सो मार्केटिंग इंक्लूड्स गुड्स, सर्विसेज, देन एक्सपीरियंस। डिटेल में आपको लिखना है, ये यूनिट 1 से है क्वेश्चन, राइट। पीपल, प्लेसेस, what else? Organization, property, events, information, and ideas. So this is all in this video. So I will try my level best to upload one more video जहाँ पे मैं एक दूसरा सैम्पल पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। So you must practice these papers, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कितने 1 मार्कर हैं, कितने 2 मार्कर हैं, and how many 4 marker will be asked. So I hope this video is going to help you while preparing for your exam. Thank you very much.